आप चिंतित हो आपकी हेल्थ, वेल्थ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से? आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर से आप सही रेमेडी जान सकते हो। लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। कॉल मी। हाय, मैं शास्त्री नितिन ज्योतिष आज आपके सामने फिर ये हफ्ते में आपके तरफ से एक सवाल सामने, एक सही जवाब, एक सही रेमेडी, एक सही स्टोन। आपके तरफ से कॉल आना शुरू हो गया है यहां पे, लेकिन हर एक टाइम की तरह शो शुरू करने से पहले गणेश जी को याद तो करते ही है। ये शो में अगर आपकी प्राइवेसी मेंटेन करने की है और आपको कोई प्राइवेट क्वेश्चन या प्राइवेसी वाला क्वेश्चन पूछने का है तो आपको यहां पे नहीं पूछने का है, लेकिन शो खत्म हो जाने के बाद आप मेरे साथ बात कर सकते हो। जो स्क्रीन पे डिटेल्स आती है उनके जरिए मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो गणेश जी को याद करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्म देवो सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोः नमस्तुते नारायणी नमोः नमस्तुते नारायणी नमोः नमस्तुते। हेलो 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 यस हेलो, हाँ जी, જાન્યુઆરી 859 કોના માટે પૂછવાનું છે? હાજી આપના માટે? ઓકે, બર્થ ડેટ શું છે? 59 જાન્યુઆરી 8 1959। બર્થ ટાઈમ શું છે? 12:43 નાઇટ 43 નાઇટ में। બર્થ પ્લેસ શું છે? અમદાવાદ ગુજરાત। आप एक सेकंड होल्ड રાખો। આપનો સવાલ बताओ प्लीज। about retirement life and આયુષ્ય। આયુષ્ય અને રિટાયરમેન્ટ લાઈફ, રાઈટ? યસ ઓકે, જો સાંભળો, અત્યારની મિનિટે જે કુંડળીમાં તમારી ઉંમર બતાવે છે, જે પસાર થઈ રહ્યો છો, એ 52-53 વર્ષની આપની ઉંમર છે, રાઈટ? રાઈટ। ઓકે, જો પહેલી વાત સાંભળો, હેલ્થ માટેનો પહેલો સવાલ છે। હેલ્થ માટેનો અહીંયા આગળ તમારી હેલ્થ પ્લસ એન્ડ માઇનસ ઉપર ચડવાળી બહુ રહેશે, પણ એમ નહીં થાય કે તમે હોસ્પિટલાઇઝ થઈ ગયા કે તમારે 5-25 માણસને ખબર કાઢવા આવવું પડ્યું, તમે કોઈ સિરિયસ થઈ ગયા અને તમારે લોકોને તમારી ખબર કાઢવા આવવું પડ્યું, એવી કોઈ તમને માંદગી આવવાની નથી। બીજી વાત, જો સાંભળો, જો અત્યારના પ્રમાણે તમે એવું કહેતા હોય કે ભાઈ મારી હેલ્થ માટે અને તમે ફ્યુચર માટે કહો છો, 58-59 બોર્ન થયો છે તમારો, અને જે ઉંમર પ્રમાણે હવે ફ્યુચરનું વિચારો, એટલે તમારો ફ્યુચર તો કદાચ ના જ હોય, કારણ કે તમારી ઉંમર પ્રમાણે તમારો કોઈ પર્ટિક્યુલર કોઈ ક્વેશ્ચન ખરો આપનો કે મારે જોબથી પૂછવું છે કે મારે કોઈ પર્સનલ એવું કંઈ? આયુષ્ય। આયુષ્ય, એક સેકન્ડ હોલ્ડ રાખો। જો સાંભળો, જન્મ લગ્ન કુંડળી, ચલિત લગ્ન કુંડળી અને નવમાંશ લગ્ન કુંડળી, અગર ત્રણેય લગ્ન કુંડળીનું કેલ્ક્યુલેશન કર્યા પછી તમારું આયુષ્ય 71 યર્સનું આયુષ્ય તમારું કહેવાય। જુઓ સાંભળો, હવે 71 યર્સ સુધી તો તમને આ ત્રણ કુંડળીમાંથી કોઈ હેલ્થ અંગે પ્રોબ્લેમ થવાનો નથી, વાંધો આવવાનો નથી, પણ જ્યારે જન્મ લગ્નમાંથી ચલિત લગ્ન કુંડળીમાં જ્યારે શનિ બદલાઈ જાય ત્યારે તમારી એ કુંડળીમાં તબિયત રગડ દગડ શરૂ થઈ જશે તમારી, પણ મરવાના જલ્દી નથી તમે। ઓકે, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, થેન્ક યુ વેરી મચ, થેન્ક યુ। हेलो हेलो Hello, how are you doing today? हेलो, आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। व्हाट अबाउट यू? I'm doing good. The question is, my date of birth is August 30th, 1984. 30 ऑगस्ट 84. 1984। બર્થ ટાઈમ શું છે? Birth time is between 8:30 and 8:35 p.m. That's fine, no problem.
एंड बर्थ प्लेस શું છે? Place is, well, my father was posted in North Bengal at that time. So it was in Siliguri, North Bengal, India. सीडी उसका स्पेल बताएंगे? SILIGURI. ILI उसके RI in the end, not LI. उसके आजू बाजू में कोई है बड़ा? वेस्ट बंगाल बोलते हैं कि क्या? हाँ जी, वेस्ट बंगाल जी. एक सेकंड होल्ड रखिए. ओके, क्या पूछने का है बताइए. I'm getting conflicting reports. Somebody is telling I'm Tula Rashi, somebody telling Kanya. So which is right? ओके, आपकी तुला राशि है. अच्छा. अब दूसरी मेरी बात सुनो. जी. ओके, अगस्त 38 1984 में आपका बॉर्न हुआ था, राइट? जी. ओके ओके, रात को 8:36 के आजू बाजू में आपका बॉर्न हुआ था, राइट? Between 8:30 8:35. यानी मेरी बात सुनो, 8:25 से लेके आपका 8:45 तक आपका तुला राशि चलता था, यानी आपका जन्म तुला राशि में हुआ है. दूसरा क्वेश्चन बताइए आपका. Second question is about professional life. What is in the next 3 years? What are the outlooks? ओके, लेट मी सी प्लीज. ओके, मेरी बात सुनो. जो आगे का 3 साल का आप पूछते हो ने, जी. देखो, ये अगर 3 साल, ये आपकी 3 कुंडली के ऊपर से जन्म लगन, चलित लगन और नवमांश लगन, 3 कुंडली के ऊपर से आपके आने वाला जो 3 साल है वो आपका दिसंबर 2015 तक आपका आने वाला टाइम सब मार्वलस टाइम चलता है, अच्छा टाइम. ओके. आगे सुनो, अगर आप ये कुंडली में स्टोन में बिलीव रखते हो तो कौन सा स्टोन पहनने का, कौन सा फास्ट करने का, कौन सी पूजा करने की, वो मैं आपको बता देता हूं. ओके, देखो, ये कुंडली में अगर आप रेड कोरल पहनोगे, यानी मंगल बोलते हैं, मूंगा बोलते हैं, अगर वो पहनोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा. देखो, जो ये कुंडली के मुताबिक आप, मैं बता सकता हूं कि रेड कोरल पहनोगे बिकॉज आप बहुत एम्बिशन वाले, एक मिनट आराम से नहीं बैठने वाले, ये करने का है, वो करने का है, वो करने का है, ये करने का है. तो इसके मुताबिक आप मूंगा पहन सकते हो, मंगल पहन सकते हो. और ये मंगल पहनोगे तो ये तीनों कुंडली से, वैसे देखने जाते हो तो जन्म लगन कुंडली में थोड़ा सिस्टमैटिक लाइफ जीने वाले हो. एम आई राइट और रॉन्ग? यू आर करेक्ट. यानी देखो, मेरी बात सुनो. ओके, अब एक कुंडली का प्रिडिक्शन पूरा हुआ. ये दूसरी चलित लग्न और नवमांश लग्न, दोनों कुंडली में भी जो आमने सामने ग्रह आते हैं, 2 पाप ग्रह आते हैं, तो एम्बिशन के साथ साथ खुद अपने स्टबन नेचर से भी आगे चलते हो. एम आई राइट और रॉन्ग? यस, यू आर राइट. देखो, अब आगे सुनो. अगर ये 3 कुंडली का कैलकुलेशन के मुताबिक अगर आपको कोई भी अच्छा रिजल्ट, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए, तो आपको रेड कोरल पहनने का है. मूंगा बोलते हैं उसको, मंगल बोलते हैं. और ये मूंगा मंगल पहनने के बाद यू विल बी फाइन. लेकिन ये मूंगा पहनने के बाद एवरी ट्यूसडे या तो फिर एवरी डे आप गणेश की पूजा करने के बाद ही बाहर निकलना, उसके पहले मत निकलना. ओके? और आने वाले जो 3 साल यहां पे दिखाते हैं, इट इज गोइंग टू वेरी मार्वलस. ओके? थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच. ओके, थैंक यू. हेलो 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 हेलो. हेलो. हाँ जी. जी हाँ,
मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 जनवरी 1981। जनवरी 1981। बर्थ टाइम 5 इन द मॉर्निंग। 5 इन द मॉर्निंग। और बर्थ प्लेस अमृतसर, इंडिया। अमृतसर पंजाब। जी हाँ, अमृतसर पंजाब। ओके, एक सेकंड होल्ड रखिए। जी हाँ। आपका सवाल बताइए प्लीज। वो मैं एक्चुअली इंडिया से डॉक्टर हूँ, तो यहाँ पे जो रेजिडेंसी है पोस्ट ग्रेजुएशन मिलने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, कितने साल से यहाँ पे हो? आई एम सिंस हियर 2009। ओके, आज तक आपने कोई फास्ट उपवास या तो कोई स्टोन हाथ में पहना है आपने? स्टोन? कोई स्टोन आपकी फिंगर पे है? यहाँ पे दिखता है इसलिए है लिटिल फिंगर पे, और मैं पहले पिंक पुखराज पहना हुआ था इंडेक्स फिंगर पे, राइट हैंड पे। पिंक पोखराज पहना था आपने? ओके, मेरी बात सुनो पहले। जी हाँ। देखो, ये कुंडली में अगर आपके लाइफ में कोई भी नजर के सामने कोई जॉब का कोई भी रुकावट का कोई प्रॉब्लम आएगा तो क्या करने का? आपको ऐसा लगेगा कि आपको जॉब दिखेगी आपके एजुकेशन के मुताबिक, आपकी डिग्री के मुताबिक, कि जॉब आ गई आ गई आ गई आ गई, जैसे लड्डू आ गया, लेकिन लड्डू हाथ में आता है लेकिन खा नहीं सकते। एम आई राइट और रॉन्ग? जी हाँ, ऐसे ही हो रहा है। ओके, दूसरी बात, ओके, आपके नौवें स्थान में यानी आपके तकदीर के स्थान में आप पापग्रह लेके जन्म हुआ है, तो उसका मतलब क्या होता है? आपसे जो पीछे आया हुए इंसान है वो भी आपसे आगे निकल जाएंगे और आप उधर के उधर रह जाओगे। एम आई राइट और रॉन्ग? जी हाँ। दूसरी बात, यानी आपको स्टोन पहनने का है, और कौन सा स्टोन पहनने का है मैं बता देता हूं आपको। भले कोई भी स्टोन पहना है अभी, लेकिन आपको मूंगा स्टोन पहनने का, रेड कोरल, मंगल बोलते हैं उसको, मूंगा। वो मूंगा स्टोन पहनने का, और वो आपको पहनने का है 4.5 से 5 रति का पहन लो स्टोन। क्यों? आपका जो देह स्थान है, हर एक आदमी का एक देह स्थान होता है, थिंकिंग, सोचने की प्रकृति, यानी आपकी जो सोचने की प्रकृति है। जी हाँ। और ये प्रकृति ऐसी दिखाती है कि जैसे शास्त्री जी, भले कितनी भी मेरे पास डिग्री है, लेकिन जब से मैंने यहां पैर रखा है तब से मेरा माइंड मशीन की तरह चलता है, सोचते सोचते मैं आज पागल हो गया हूं, ऐसा आपको फील हो रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस यस। दूसरी बात सुनो। ओके, अब ये सब जो प्रिडिक्शन किया, लेकिन इन शॉर्ट अगर आपको कुछ मार्वलर्स लाइफ बनाने की है, मार्वलर्स आपका फ्यूचर बनाने का है, और कोई अच्छा रिजल्ट आपको चाहिए, तो आपको मैंने बताया रेड कोरल आपको पहनने का है, और मंगलवार के दिन आपको पहनने का। ट्यूसडे को? तो वो कौन से पेन में? राइट हैंड की 3rd फिंगर पे आएगा। गोल्ड में पहनना चाहिए कि सिल्वर में? कैसे? देखो मेरी बात सुनो, अगर परमानेंट पहनने का है, क्योंकि ये परमानेंट बात हो रही है, अगर परमानेंट पहनने का है तो आपको गोल्ड में ही पहनने का। अच्छा, गोल्ड। ओके? जी हाँ। क्योंकि अगर सिल्वर में पहन लिया आपने तो आज नहीं तो कल गोल्ड में तो कराना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्टोन आपको जब अच्छा रिजल्ट देना शुरू होगा तो निकालने का तो सवाल ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब, मैं एक कहता हूं कि कल करो सो आज करो, आज करो सो अब करो। और बताइए क्या पूछने का है? तो नहीं, आने वाले जैसे 3-6 महीने में ये हो जाएगा काम एजेंसी का? आने वाले 3-6 महीने का तो वो सिर्फ रुका है तो सिर्फ रेड कोरल की वजह से रुका है। अगर आपने रेड कोरल इमीडिएटली नहीं पहना तो आप ट्यूसडे एक टाइम खाना शुरू कर दो, मंगलवार शुरू कर दो। अच्छा, मंगलवार? हाँ जी, तो ट्यूसडे एक टाइम खाना खाओ, और आने वाले 3 महीने के बाद आप मुझे कॉल करना कि शास्त्री जी मैं वो अमृतसर वाला बंदा बात करता हूं, आई एम हैप्पी टुडे, आप मुझे कॉल करना। अच्छा जी, मतलब आपके हिसाब से अगर मैं ये करूंगा तो हो जाएगा? 26 तारीख 3 महीना
सॉरी 3 महीना, यानी आज से लेके 3 महीना, और वो 26 तारीख चली जाती है, उसके बाद में आप मुझे याद करना। एक टाइम खाना खाओ, दोबारा सॉल्ट नमक नहीं लेने का है। नहीं नहीं, कैसे कैसे दोबारा से बोलेंगे? एक टाइम आपको जो भी खाना है वो खा सकते हो, जैसे दोपहर को खा लिया। दोबारा आपको फ्रूट, दूध, जूस ले सकते हो, लेकिन कोई सॉल्ट वाली चीज आप दोबारा नहीं ले सकते। अच्छा, ये डेली करना है? क्या? नहीं नहीं, ये डेली। मैं ट्यूसडे की बात करता हूं। अच्छा, ट्यूसडे को? हाँ, खाली ट्यूसडे। खाली ट्यूसडे को। और बाकी कुछ पूछने का है? जो आप शो खत्म हो जाने के बाद कॉल कर सकते हो, जो स्क्रीन पे डिटेल्स आती है वही ऊपर आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, हर एक इंसान को लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। कॉल मी। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।